Good evening, everyone. So basically, I started from the Harivansh Rai Bachchan poem. This is like this: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ सौ बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत भी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। द मोरल ऑफ दीज लाइन्स आर जस्ट कीप काम, with love and patience everything is possible, and it is just a dementia. Good evening. I Aarti Sharma, student of law studying in Jivaji University Gwalior. Right now I am interning at Niche Advocacy Foundation. Niche Advocacy Foundation is a social profitable organization. It is working under the areas of emotional fitness and health. On the behalf of Niche Advocacy Foundation, I welcome to you all. After organizing successful event in the past, we are back with Unhide, which include expert talk, imparting the knowledge about the dementia. Worldwide, 15 million people are living with Alzheimer's and other dementias. So month of September is observed as the World Alzheimer's Month. Now, I would like welcome to all the respective guests of our event, Dr. Purnima ma'am, Dr. Dhananjay Chavan sir, Shayali Kulkarni ma'am, Shonal Titnis ma'am. Welcome you all. So now I would like to call Dr. Purnima ma'am, who is neurologist in Pune and also in Nagpur. She is a director of Niche Advocacy Foundation. She has a keen aptitude for a holistic approach to the neurology patients. She believes in teamwork with the neuropsychologist, speech and language therapist. She also cares for the health of caregivers of neurologically affected people. Her special interests are headache, memory problems, neurodegenerative or disorders like Parkinsonism and dementia, sleep disorders, neurorehabilitation, neuropalliation, and hospice services in neurology. Currently, she is working as an assistant professor in neurology in Bharati Vidyapeeth Medical College and Hospital. She also her evening OPD in Jupiter Hospital, Vaner. Ma'am, I request to give a comprehensive overview of memory and dementia. Over to you, ma'am. थैंक यू सो मच आरती। तो जैसे आरती ने आपको समझाया, सितंबर इज अ मंथ डिक्लेयर्ड फॉर अवेयरनेस फॉर डिमेंशिया, फॉर अल्जाइमर्स स्पेसिफिकली। मगर अल्जाइमर्स डिमेंशिया का सिर्फ एक प्रकार है, इसलिए हम पूरे डिमेंशिया के ही बारे में बात करने वाले हैं। So today we have, as Aarti has said, 4 of us are the experts, and I am going to give an overview of memory and dementia. खास करके memory यानी स्मृति के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। Our brain is a very amazing organ, and it is because of our brain that we have our identity. हमारी जो पहचान है वो हमारे चेहरे की वजह से नहीं है, हमारी आंखें, हमारी नाक, इसकी वजह से नहीं है हमारी पहचान हमारे व्यक्तित्व से है, और हमारा व्यक्तित्व हमारे ब्रेन की वजह से है, हमारे मस्तिष्क की वजह से है। So all these people you see who are celebrities, they were celebrities because of their work, because of their qualities. और ये हमारा जो दिमाग है वो ही हमारी वर्किंग एबिलिटीज और वही हमारी बुद्धिमत्ता का कारणीभूत है, और इसलिए उसी की वजह से हमारी पहचान है। Now humans are different from all other animals. बाकी के जो प्राणी हैं, ऐसा नहीं हम कह सकते कि वो सब बुद्धू है, नो नॉट एट ऑल, उनमें भी इंटेलिजेंस है, मगर humans are the most intelligent species on earth. We can form teams, we can look after each other, and we can plan very complicated plans, and we can execute them. So that is the difference of human beings. We are at the peak of the evolutionary pyramid on earth. पृथ्वी पर जो भी evolution हुआ है उसमें हम सबसे ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, और इसलिए हमारा जो इंटेलिजेंस है वो अलग है बाकी प्राणियों के हिसाब से। There are 100 billion neurons that comprise the brain, as many as the entire galaxy has stars. जितने हमारे गैलेक्सी में तारे हैं उतने न्यूरॉन्स, उतनी पेशियां हमारे दिमाग में है, इतनी सारी पेशियां इतनी छोटी सी जगह में बसी हुई है। ब्रेन का प्रॉब्लम ये है मगर कि ब्रेन को खुद का पेन नहीं समझता। देयर आर नो पेन रिसेप्टर्स इन द ब्रेन।
इसलिए हार्ट अटैक का पेशेंट तुरंत हार्ट में चेस्ट में दर्द होने के बाद तुरंत आ जाता है डॉक्टर के पास की चेस्ट पेन। आर्थराइटिस का पेशेंट घुटनों में दर्द है करके आ जाता है। मगर ब्रेन की बीमारियां ऐसी है कि जो बैकग्राउंड में हमारे लाइफ में चलती रहती है मगर हमें पेन महसूस नहीं होता, इसलिए हमें वो हमेशा कुछ देर के बाद समझ में आती है। So there are no pain receptors in the brain and so the brain cannot feel any pain, and that makes it problematic for us neurologists because we have to rely on the other effects of the brain problem to understand कि बीमारी है क्या। तो हम अनुमान लगाते हैं, हमारा बहुत सारा काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जैसे रहता है कि हम अनुमान लगाते हैं कि ये हुआ है पेशेंट को, इसका मतलब ये बीमारी होगी। पेशेंट इस सिम्टम से नहीं आता कि मुझे इधर दर्द हो रहा है या मुझे इधर दर्द हो रहा है। पेशेंट कम्स विद सिम्टम्स of how that illness of the brain has affected his life, his personality and other aspects. तो ब्रेन होता कैसा है, पनीर के जैसा होता है या टोफू के जैसा होता है। इट्स अ वेरी सॉफ्ट ऑर्गन, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको नेचर ने स्कल दिया हुआ है और इसीलिए ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, हेलमेट पहनना ये ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा ब्रेन जब बना तब हाई स्पीड मोटरसाइकिल्स नहीं थी, तब लोग दौड़ के इधर उधर जाते थे और फिर बाद में प्राणियों को डोमेस्टिकेट करके घोड़ों पर सवार होके जाते थे। तो उतनी स्पीड की ब्रेन को आदत थी, मगर अभी तो हाई स्पीड व्हीकल्स है और उसमें अगर इंजरी होती है, कोई गिर जाता है तो ब्रेन कैन बी डैमेज इरिवर्सिबली एंड फेटली, जान जा सकती है। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि ब्रेन इज अ वेरी सॉफ्ट एंड वल्नरेबल ऑर्गन, नाजुक ऑर्गन है ब्रेन। It is the first smart device we get in life. तो अभी हम इतने स्मार्टफोन के चक्कर में पड़े हुए हैं, मगर जन्म से ही हमारे पास एक स्मार्ट डिवाइस है और वो स्मार्ट डिवाइस है हमारा ब्रेन। तो हमारा ब्रेन एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर की तरह है, बहुत सारे काम ब्रेन करता है, हमारे व्यक्तित्व का कारण है। और जो भी ब्रेन के बारे में समझना है, मैं मेरे मेडिकल स्टूडेंट्स को भी स्मार्टफोन के एग्जाम्पल से ही ब्रेन के बारे में सिखाती हूँ, क्योंकि स्मार्टफोन लोगों को बहुत समझता है। हम फोन के लिए भी गार्ड लेते हैं कि फोन को कहीं गिरने के बाद चोट ना लगे, तो फोन गार्ड भी हम खरीदते हैं। तो हम अपने फोन को समझते हैं बहुत ज्यादा, हमारे ब्रेन से भी ज्यादा। तो ब्रेन इज सच अ ब्यूटीफुल ऑर्गन, काम पूरा बांटा हुआ है और एक जगह दूसरी जगह के साथ झगड़ा नहीं करती कि तेरा काम ज्यादा अच्छा है, मुझे वो करने दो, मेरा काम मुझे बोर हो रहा है। नो, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल वर्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड ईच एरिया ऑफ द ब्रेन इज डूइंग इट्स ओन वर्क एफिशिएंटली। और इसीलिए हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, आज एक दूसरे को सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन इस वक्त भी ये सारे काम कर रहा है। तो ये मोटर स्ट्रिप है इधर, और मोटर स्ट्रिप में भी काम बांटा हुआ है कि वॉइस बॉक्स का काम कौन करेगा, जुबान का काम कौन करेगा, चेहरे का काम कौन करेगा, हाथ का, अंगूठे का, उंगलियों का, कमर का, पैर का। तो ये सब काम बांटे हुए हैं। और राइट और लेफ्ट साइड में भी काम बांटा हुआ है। तो रफली राइटिंग, लैंग्वेज, साइंटिफिक स्किल्स, एनालिटिकल रीजनिंग, ये लेफ्ट साइड को माने जाते हैं इन राइट हैंडेड पीपल। एंड लेफ्ट हैंड कंट्रोल, right hand control, it's a reverse. So left hand controls, left brain controls the right hand and language, and right brain controls the left hand, and also creativity and spatial awareness, imagination, dimensions, visual understanding, समझना कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और किस तरह से रास्ते हमारे आसपास है, एक रूम से दूसरे रूम में कैसे जाना है, ये सब हमें तब समझता है। Now, because the brain is such an active organ, it is constantly working. Lack of oxygen in the brain, even for 5 to 10 minutes, results in permanent brain damage. और body का 2% weight है brain का, मगर 20% blood supply brain को जाता है। So brain is such an important organ कि though it is 2% of the body weight, it draws 20% of the oxygen and blood supply. So that is the unique part of the aspect of the brain.
नाउ न्यू ब्रेन कनेक्शंस, हम जब कुछ सीखते हैं इसका मतलब क्या है, पेशियां तो नई बनती नहीं है ब्रेन की, तो होता क्या है कि नए कनेक्शंस बनते हैं. सो ब्रेन फंक्शंस ऑन न्यू कनेक्शंस, those are known as synapses, and when awake the human brain produces enough electricity to power a small light bulb. So these are a few fun facts, along with the fact that the human brain produces as many as 12,000 to 50,000 thoughts every day, depending on how deep of a thinker a person is. So नो अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो लोगों को मालूम नहीं होता, हमको लगता है कि नींद में है तो ब्रेन आराम कर रहा है. नो, नींद में जब हम होते हैं तो ब्रेन के अलग हिस्से काम कर रहे होते हैं. ये नॉन रेम स्लीप है, ये रेम स्लीप है. सो इन नॉन रेम स्लीप डिफरेंट पार्ट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लीप. हमारे उपनिषदों में भी दिया हुआ है कि देयर आर two stages of sleep. So in one stage these red spots are active, in the other stage these red spots are active. And the housekeeping function, झाड़ू पोछा, ब्रेन का सारा झाड़ू पोछा नींद में होता है. फाइल सेविंग का जो फंक्शन है, फाइल सेव होती है, मेमोरीज फॉर्म होते हैं, कंसोलिडेट होते हैं, वो सारा फंक्शन स्लीप नींद में होता है. इसलिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग टू लर्निंग एंड द ब्रेन, few quick facts we are going to see. We are going to see what memory means. तो मेमोरी, स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश, इससे क्या होता है, हमको लगता है कि स्मृति भ्रंश मतलब सिर्फ मेमोरी जाना, आज क्या खाया वो याद नहीं रहना. बट दैट इज नॉट सो. मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल इंटेलिजेंस सिस्टम, या जिसे हम कॉग्निटिव फंक्शन बोलते हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ आवर हायर फंक्शंस. सो कॉग्निशन का मतलब क्या है, इट इज अ मेंटल एक्शन या प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना, उसको समझना कैसे, हमारी सोच के जरिए से, थ्रू आवर थॉट, थ्रू आवर एक्सपीरियंस एंड थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स. हमारे विचार, हमारे अनुभव और हमारे इंद्रिय, इनके द्वारा ये सब समझ पाना और ये मेंटल एक्टिविटी कर पाना इज कॉग्निशन. So intelligence is the ability to acquire and apply knowledge and skills. So all this form a part of our personality, and diet, sleep are important parts, important aspects of a healthy brain. And neuroplasticity, जो niche के नाम में जो N है, N stands for neuroplasticity, NICHE, neuroplasticity for individual and community health education. And advocacy. So what we are doing today is advocacy. We are advocates for emotional fitness and mental health. Neuroplasticity मतलब ब्रेन की सीखने की क्षमता, ब्रेन की सीखने की क्षमता मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी. एंड रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वसन हम कर सकते हैं ब्रेन का कुछ हद तक. सो सेविंग योर ब्रेन, दैट इज आवर मिशन. So these are the different lobes of the brain, and as you see this association cortex ऐसे बहुत सारे हैं. तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है बहुत सारा, और ये फोल्डेड ओवर इटसेल्फ, ऐसे इस प्रकार से ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है. और ये सारे फोल्डिंग्स में वो जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, दे आर ऑल देयर इन दिस फोल्ड्स ऑफ गायरा एंड सल्का. And the simple act of a sensation is, and a motor activity की पिच किया किसी ने और हमने हाथ विड्रॉ कर लिया, इसके लिए भी एक पूरी नेटवर्क है कि पहले सेंसेशन जाएगा और फिर वहां से कमांड आएगा कि हाथ विड्रॉ करना है. इतनी सिंपल सी एक्ट के लिए भी बहुत इंट्रिकेट मशीनरी है, तो मेमोरी के लिए तो बहुत इंट्रिकेट मशीनरी है. सो लेट अस गो लिटिल बिट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. तो एसोसिएशन कॉर्टेक्स जो है, ये सारे इधर, ये एक्स्ट्रा स्पेस जो दिखती है, जैसे हमारे फोन में एक्स्ट्रा स्पेस है सेव करने के लिए डेटा, जो हम एप्स डाउनलोड करेंगे वो जगह लेंगे. तो जो भी हम नया सीखेंगे लाइफ में, वो ये सब एसोसिएशन कॉर्टेक्स जो है, एक्स्ट्रा एसोसिएशन कॉर्टेक्स, यहाँ पे एसोसिएशन कॉर्टेक्स. तो जो भी एक्स्ट्रा एसोसिएशन कॉर्टेक्स है, दैट इज द एक्स्ट्रा फ्री स्पेस इन आवर ब्रेन टू अकोमोडेट. जो हम नया सीखेंगे वो कहाँ रखेंगे, तो वो सब एसोसिएशन कॉर्टेक्स में रखेंगे. तो दीज एसोसिएशन कॉर्टेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंटेलिजेंस अगर हम देखेंगे, तो पहले इंटेलिजेंस हमारी जो बुद्धि है, सबसे पहले जरूरी बात हमारे बुद्धि के लिए है कि हमारा होश में होना, कॉन्शियसनेस, और फिर ध्यान दे पाना, अटेंशन. और सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट के लिए ध्यान देने से फायदा नहीं है. तो अभी हमारा प्रोग्राम 2 घंटे का है, तो 2 घंटे तक आपको ध्यान देते रहना है. सो सस्टेन्ड अटेंशन, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन. और फिर आता है मेमोरी. तो अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं होगा, अगर हम ध्यान ही नहीं दे पाएंगे तो स्मृति कहाँ से तैयार होगी. सो मेमोरी, देन वी कम टू मेमोरी.
तो मेमोरी के बहुत सारे प्रकार है। ऐसा नहीं है कि सुबह मैंने नाश्ते में क्या खाया बस वही मेमोरी है, मेरा जन्मदिन कब का है बस वही मेमोरी है। नो, सो देयर इज फर्स्ट डिक्लेरेटिव या एक्सप्लिसिट मेमोरी, जो हम जानते हैं कि ये मेरे याददाश्त का हिस्सा है, वो डिक्लेरेटिव या एक्सप्लिसिट मेमोरी, हम जानते हैं कि इसको स्मृति कहते हैं। तो इमीडिएट या वर्किंग मेमोरी है, मतलब मैंने अगर आपको 4 वर्ड्स अभी बता दिए कि टेबल, दीवार, आकाश और दुख, टेबल, दीवार, आकाश और दुख, तो ये मैं आपको बोलूंगी बताइए क्या 4 वर्ड्स मैंने बताया आपको, तो आप तुरंत बता पाएंगे मुझे कि टेबल, दीवार, आकाश और दुख। ये हो गई आपकी इमीडिएट या वर्किंग मेमोरी। तो हम जब फोन नंबर याद रखते हैं, मैंने बता दिया आपको 541234, आपने याद से मुझे बता दिया 541234, दैट इज इमीडिएट और वर्किंग मेमोरी। कल मैं पूछूंगी मैंने क्या बताया था लेक्चर में नंबर, आप भूल जाओगे। सो दैट इज इमीडिएट और वर्किंग मेमोरी। दीज फाइल्स डोंट गेट सेव्ड इन आवर हार्ड ड्राइव्स। शॉर्ट टाइम और शॉर्ट टर्म और रिसेंट मेमोरी, मतलब आज सुबह मैंने नाश्ते में क्या खाया, मैं कितने बजे उठी, कल के रात के खाने में मैंने क्या खाया, दैट इज शॉर्ट टर्म और रिसेंट मेमोरी। फिर रिमोट और लॉन्ग टर्म एपिसोडिक मेमोरी, मतलब मेरा जन्म कब हुआ, मैं कौन सी स्कूल में थी, भारत को आजादी कब मिली, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऑल दिस इज रिमोट और लॉन्ग टर्म एपिसोडिक मेमोरी। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब डिले ऑफ मिनट्स और आवर्स, और लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब डिले ऑफ वीक्स, मंथ्स और ईयर्स। तो इन सब मेमोरी सिस्टम्स के लिए अलग अलग ब्रेन के हिस्से जरूरी होते हैं। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए हिपोकैम्पस की बहुत जरूरत होती है, मगर जो बहुत पुरानी हमारी यादें होती है वो हिपोकैम्पस को बाईपास कर लेते हैं। तो ये डिक्लेरेटिव मेमोरी के बाकी भी हिस्से हैं, एपिसोडिक, सिमेंटिक एंड सो डिक्लेरेटिव वाज वन ऑफ दोस टाइप्स, एंड एपिसोड्स हमें घटनाएं भी याद होती है, और सिमेंटिक मतलब नॉलेज बेस्ड मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी वी विल कम टू नाउ। सो एपिसोडिक मतलब तब क्या हुआ था, जब एक्सीडेंट हुआ तब कौन कौन था, ये सब हम जब पूछते हैं तो दैट इज एपिसोडिक मेमोरी। एंड सिमेंटिक मेमोरी मतलब जो सब कॉलेज के बच्चे करते हैं कि डेफिनेशन लिखना, किसी चीज की ट्रू और फॉल्स करना, तो ऑल दैट इज नॉलेज बेस्ड मेमोरी विच इज सिमेंटिक। और नॉन डिक्लेरेटिव मतलब हम ही नहीं जानते कि इसको स्मृति कहते हैं, तो नॉलेज ऑफ अ प्रोसीजर एंड knowledge of a concept without understanding that we have understood. So procedural skills, चाय कैसे बनाते हैं, या फिर बच्चों को पूछेंगे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे यूज करेंगे, मुझे बताओ तुम। सो प्रोसीजरल मेमोरी दैट कम्स अंडर नॉन डिक्लेरेटिव, इम्प्लिसिट, इनबिल्ट है हम में, तो दैट इज नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। एंड नाउ वी कम टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिमेंशिया। फिर डिमेंशिया का मतलब क्या है? डिमेंशिया मतलब एक ऐसी बीमारियों का सेट है, एक बीमारी नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जिसमें डिक्लाइन इन कॉग्निटिव एबिलिटीज होता है। ये सारी जो हमने क्षमताएं देखी, उन क्षमताओं में किसी भी कॉम्बिनेशन में कम से कम 2 क्षमताओं में बाधा होने लगती है। So at least 2 cognitive abilities of sufficient severity to interfere with function during daily activities, कि हमारे रोज के काम में बाधाएं आती है, रोज के काम में बाधाएं आती है। More than 2 abilities are lost. The term dementia के शब्द से कारण नहीं समझता। The term dementia does not imply an underlying etiology. Decline must be from a prior higher level of functioning. तो कोई पहले से ही मेंटली चैलेंज्ड अगर है तो वो 60 साल का हो गया और उसकी मेंटल एबिलिटी उतनी ही रही है, तो उसको हम डिमेंशिया नहीं कहते। मगर कोई पहले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहा और अभी वो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाता है और छुट्टे कितने वापस आने चाहिए वो उसको नहीं समझता, तो पहले की जो इंटेलिजेंस लेवल है उससे नीचे सरकना, दैट इज dementia. So decline must be from the prior higher level of functioning. और डिमेंशिया के जो प्रकार है, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिमेंशिया, वैस्कुलर डिमेंशिया, ल्यूई बॉडी डिमेंशिया एंड मिक्स्ड डिमेंशिया। सो अलग अलग प्रकार में अलग अलग ब्रेन के हिस्से श्रिंक होते हैं। एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो जैसे किसी सॉफ्टवेयर को सेल्फ डिस्ट्रक्शन का अगर आज्ञा दे दी तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन्स, कुछ गलत प्रोटीन्स एक्यूमुलेट जमा हो जाते हैं ब्रेन की पेशियों में, जिसकी वजह से वो
उस पेशी की सिस्टम हैंग हो जाती है और वो पेशी खुदकुशी कर लेती है. इट इज अ प्रोग्राम सेल डेथ एंड दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमेंशियाज, अलग अलग प्रकार जो डिमेंशिया के हैं वो इसलिए बने हैं क्योंकि हर डिमेंशिया के प्रकार में अलग अलग जगह की पेशियों में एपोप्टोसिस की क्रिया शुरू हो जाती है. तो ये जो है वो फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया का है. तो फंक्शनल इमेजिंग स्टडीज है ये, एफडीजी पेट स्कैन है. फिर ये ल्यूई बॉडी डिमेंशिया में है का है, तो इसमें बेसल गैंग्लिया में ज्यादा हुआ है. फिर ये है प्रोग्रेसिव अफेजिया, मतलब सिर्फ भाषा पर असर होता है, उसका है. और ये है पोस्टीरियर कॉर्टिकल एट्रोफी, तो इसमें ज्यादातर इधर हुआ है वो लॉस. तो डिपेंडिंग अपॉन विच ब्रेन पार्ट स्टार्ट श्रिंकिंग, किस हिस्से में वो सिकुड़न शुरू होती है, उस हिसाब से ये डिमेंशिया के प्रकार होते हैं. अल्जाइमर्स डिजीज रिमेन्स द कॉमनेस्ट टाइप, बट इन इंडिया वी सी अ लॉट ऑफ मिक्स्ड डिमेंशिया. दैट मीन्स लिटिल बिट अल्जाइमर्स एंड लिटिल बिट वैस्कुलर्स. Lewy body dementia, frontotemporal dementia, these are the, and then hippocampal sclerosis is another small subset which we do see where specific short term memory loss can occur. So that is from my side, and this is a very vast topic and I hope कि जो भी doubts हैं, आपके सवाल जवाब जब शुरू हो जाएंगे तो बचे हुए doubts हम उसमें clear कर पाएंगे. So thank you so much.